Hello everyone. Last time we have seen the definition of Fourier transform and then relation between Fourier transform and Laplace transform. And we have seen one important concept, how the existence of Fourier transform. Then we have seen the Laplace. From Laplace transform we can obtain the Fourier transform provided that this x of t must be absolutely integrable. Okay, now let us see the properties of Fourier transform. Okay, so first of all, time shifting property. If the Fourier transform of signal x of t is x of ohm, then Fourier transform of x of t minus t0 is equal to e raised to minus j ohm t0 x of ohm. This property says that if we delay the signal in time domain, then in Fourier domain the phase of the signals will be changes. Okay, इसको हम लोग ये term multiplication में आ रहा है, and this term only changes the phase of the signal. Its magnitude will be 1. Okay, this is only change the phase of the signals. So what does this property says that? This property says that if we delay the signal in time domain, then in Fourier domain the phase of the signals will be changes. Okay, the proof of this property. The Fourier transform, according to the definition, Fourier transform of x of t minus t0 is equal to integral of x of t minus t0 into e raised to minus j ohm t dt. Now we'll do the substitutions. T is replaced by t minus t0 is replaced by lambda. So substitutions replace put किया, t minus t0 को lambda put किया, and then t obtained केस was dt is equal to d lambda because t0 is a constant. Okay, so here it is replaced by lambda, and this t is replaced by lambda plus t0. dt is replaced by d lambda, and therefore ये जो एक्सपोनेंशियल में दो टर्म्स है उसको स्प्लिट किया, e raised to minus j ohm lambda into e raised to minus j ohm t0 into d lambda. So this is a constant. This is इसमें हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दे क्योंकि this is इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा. लैम्बडा इज अ वेरिएबल है यहाँ. अब t0 इज अ कांस्टेंट, इसलिए उसको बाहर निकाला हम लोगों ने. And this is nothing but what it is. This is x of ohm. This is the definition of Fourier transform x of t, which is x of ohm. So it will be the Fourier transform for x of t minus t ohm and e raised to minus j ohm t0 x of ohm is a Fourier transform. Is the Fourier transform pair. तो ये Fourier transform pair है. Okay, x of t minus t0 and e raised to minus ohm t0 into x of ohm. Okay, तो sometimes कभी आपको ओम के जगह पे ओमेगा दिखेगा. Okay, so ohm is for the CT signals यूज कर रहे हैं हम लोग. Okay, this is the angular frequency of CT signal and omega is the angular frequency of DT signal. Okay, तो अगर यहाँ पे गलती से CTFT में अगर ओमेगा आता है तो you consider it as a ohm. Isn't it like this? Okay. Then next property is the frequency shifting property. Okay. Fourier transform of x of t is x of ohm. Then Fourier transform x of t into e raised to j ohm t is equal to x of ohm minus ohm 0. X of ohm minus ohm 0. This property shows that कि टाइम डोमेन में किसी सिग्नल्स का फेज अगर आप लोग चेंज करते हैं, ये क्या कर रहा है? फेज चेंज कर रहा है, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है. e raised to j थीटा का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहता है. तो अगर हम लोग कोई सिग्नल्स को एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब उसका फेज चेंज हो रहा है टाइम डोमेन में. तो टाइम डोमेन में सिग्नल का अगर फेज चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो फोरियर डोमेन में क्या हो रहा है कि उसका फ्रीक्वेंसी जो पहले ओम को था, नाउ दैट सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रहा है. नाउ द सिग्नल्स विल बी ट्रांसलेटेड एट फ्रीक्वेंसी ओम इज इक्वल टू ओम 0. ओके, तो जो सिग्नल्स पहले ओम इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा था, अभी वो सिग्नल्स ओम इज इक्वल टू ओम 0 से स्टार्ट होगा. मतलब उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? ट्रांसलेट हो गया, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो गया. इसलिए इट फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया ना यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी ओम, तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो गया. लाइक दिस इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. सो इफ यू चेंज द फेज ऑफ द सिग्नल इन टाइम डोमेन, then in a frequency domain its frequency will be translated or shifted. Okay, इसका प्रूफ है. Okay, Fourier according to definition इसका Fourier transform लेना मतलब integral of this functions into e raised to minus j ohm t dt.
देन ये दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म कंबाइन किया तो वी आर गेटिंग x of ओम माइनस ओम 0. सिंपल प्रूफ है. दिस इज फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. The next property is the duality property. Third property we are going to see is the duality property. Okay, we know that this relation between time and frequency is dual. T is equal to 1 by f or f is equal to 1 by t. Okay, dual relationship. And duality property says that ki if x of t having the Fourier transform x of ohm, then Fourier transform of x of t, ये कैसा ऑब्टेन किया x of t, तो ये जो x of ohm है उसमें ओम इज रिप्लेस बाय टी. ओके, ओम इज रिप्लेस बाय टी, तो वी आर गेटिंग कैपिटल एक्स ऑफ टी. फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 2 पाई इनटू एक्स ऑफ माइनस ओम. तो ये जो एक्स ऑफ टी है टाइम डोमेन में सिग्नल्स, उसमें टी की जगह पे रिप्लेस किया आप लोगों ने माइनस ओम. ओके, टी की जगह पे रिप्लेस किया माइनस ओम, तो वी आर गेटिंग एक्स ऑफ माइनस ओम. ओके, सो दिस इज ए ड्यूअल प्रॉपर्टी. Okay, the meaning of this property is what it is. This property says that तो property का मतलब ऐसा है कि suppose this is a square wave, एक rectangular pulse है. This rectangular pulse का अगर Fourier transform आप लोग का sampling function है. Okay, what is sampling functions that we are going to discuss now. ऐसे इसका Fourier transform है. इसका Fourier transform लिया तो उसका amplitude spectrum जो है आप लोग का, it will be like this. Okay, this is a signal in time domain x of t. If we take its Fourier transform, it will be transferred into the Fourier domain, and Fourier domain में उसका magnitude spectrum will be like this. Okay, तो अगर हम लोग इसका Fourier transform लेते हैं, अभी ये सिग्नल्स अगर कंसिडर करते हैं हम लोग like this. Okay, इसका अगर Fourier transform लेते हैं हम लोग, तो its Fourier transform will be the rectangular functions. Okay, इसका Fourier transform रहेगा rectangular functions like this. Okay, that is the meaning of this property. Okay, duality property. Okay, so here this property will be like this. कि if x of t and x of ohm is a Fourier transform pair, then Fourier transform of capital X of t. Capital X of t is here. ये जो Fourier transform signal है उसमें ohm is replaced by t. तो उसका Fourier transform रहेगा 2 pi into x of minus ohm. This is a duality property. Okay. Then इसका ये property का proof अगर हम लोग देखते हैं तो that proof we can obtain. See now here where x of t is what it is वो explain किया हुआ है. Capital X of t is nothing but x of ohm जिसमें ohm is replaced by t. Okay. And x of minus ohm कैसे obtain करते हैं हम लोग, तो जो x of t है उसमें t is replaced by minus ohm. Okay. Then proof देख रहे हैं हम लोग. इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म से इसका प्रूव कर रहे हैं प्रॉपर्टी का. इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल x ऑफ ओम इज x ऑफ t एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इनटू प्लस इनफिनिटी x ऑफ ओम e रेज टू प्लस j ओम t d ओम. इधर प्लस रहता है. ओके, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, देन ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2 पाई x ऑफ t. नाउ चेंजिंग t टू माइनस t वी ऑब्टेन. ओके, t टू माइनस टी ऑब्टेन करना है हम लोगों, तो हम लोगों को t का माइनस टी करना है. तो हियर t इज रिप्लेस बाय माइनस टी, हियर इज ऑल्सो t इज रिप्लेस बाय माइनस टी. बाय इंटीग्रेटिंग t एंड ओम वी हैव. ओके, isn't it? तो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू t एंड ओम, तो हम लोग क्या मिल रहा है. सो लेट अस सी इट इज कि x ऑफ t, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ t e raised to minus j ohm t dt is equal to this term x of t into e raised to minus j ohm t dt d ohm dt. So t is replaced by ohm किया हम लोगों ने. t जो है interchanging t and ohm किया. What we are doing is interchanging t and ohm. So when you interchange t and ohm is replaced by t, and here this sum is as it is, d ohm become dt. 2 pi x of t will become x of minus ohm. Okay. And this is nothing but the Fourier transform का definition of this signal, of this function. So this is a Fourier transform function capital X of t is equal to 2 pi x of minus j ohm. Okay. So if you take the Fourier transform capital X of t, we are getting is 2 pi x of minus ohm, not omega, ohm it is. Okay, minus ohm. Okay. Now before starting with the Fourier transform of this rectangular functions, let us see what is mean by this sampling functions. What is sampling function is?
तो सैम्पलिंग फंक्शंस इज रिप्रेजेंटेड बाय psi x and that is sin x upon x. ओके, तो sin x upon x ये जो फंक्शन है उसको बोलते हैं हम लोग सैम्पलिंग फंक्शन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय psi x और sinc x. ओके, सो दिस सैम्पलिंग फंक्शन इज, इसको अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो इसका प्लॉट ऐसा है. ओके, ये सैम्पलिंग फंक्शंस का ग्राफ अगर हम लोग निकालते हैं, ये सिग्नल्स को अगर हम लोग स्केच करते हैं तो ये सिग्नल्स विल बी लाइक दिस. ओके, तो this will be oscillatory in nature. So the sampling function is oscillatory functions. It will be oscillate हो रहा है, which has maximum amplitude at x is equal to 0. y axis पे x है, y axis पे इसका magnitude है, sampling psi x का. तो this it's a magnitude of sampling functions on x axis. So sampling function is an oscillatory function which has maximum amplitude at x is equal to 0. Here is x is equal to 0 है, उस वक्त आप लोगों को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है, और वो कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उसका हमेशा 1 रहेगा. ओके, सैम्पलिंग फंक्शंस का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विल बी 1 एंड इट इज एट x is equal to 0 and its amplitude is decreases in both the directions. Its amplitude is decreases in both the directions and zero crossing occurs at x is equal to plus or minus n by. ओके, तो पहला जीरो क्रॉसिंग जो occurs होगा जहाँ पे n equal to 1 पुट करेंगे, तो फर्स्ट जीरो क्रॉसिंग इज occurs at n equal to pi प्लस पाई माइनस पाई. ओके, सेकेंड जीरो क्रॉसिंग अगर आप लोग, ये पहला जीरो क्रॉसिंग है, इधर से स्टार्ट कर रहे तो ऐसा. ओके, ये निगेटिव डायरेक्शन में पहला जीरो क्रॉसिंग है, तो पहला जीरो क्रॉसिंग जो होगा वो प्लस माइनस पाई का होगा. सेकेंड जीरो क्रॉसिंग इज प्लस माइनस 2 पाई. थर्ड जीरो क्रॉसिंग इज प्लस माइनस 3 पाई. In general, zero crossing of the signals will be occurs at x is equal to plus or minus n. ये सिग्नल्स का जो एम्पलीट्यूड है वो कम कम होते जाता है आगे, अनसीज हो जाता है आगे सिग्नल्स. Isn't it like this? तो ये इसको बोलते हैं हम लोग मेजर लोब. दिस इज अ मेजर लोब एंड दीज आर वी कॉल्ड द माइनर लोब. ये जो है माइनर लोब हो गया, ये सेकंड माइनर लोब, ये थर्ड माइनर लोब, लाइक दिस. ओके, सैम्पलिंग फंक्शन हैज मैक्सिमम एनर्जी इन द मेजर लोब. इसमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी. ओके, तो सैम्पलिंग फंक्शन का एनर्जी कहाँ पे है, तो हम लोग बोलते हैं मेजर लोब में. माइनर लोब में एनर्जी विल बी negligible and therefore this major lobe will decide the bandwidth of the function. तो इसका बैंडविड्थ कितना है, तो इसका बैंडविड्थ विल बी मेजर लोब का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे माइनस पाई टू प्लस पाई, तो इस बैंडविड्थ विल बी 2 पाई. तो बैंडविड्थ ऑफ द सैम्पलिंग फंक्शन इज 2 पाई लाइक दिस. ओके, तो इसका बैंडविड्थ, दिस इज वी कॉल्ड सैम्पलिंग फंक्शंस. सो अभी फोरियर डोमेन में जो भी सिग्नल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे आप लोग, वो साइनोसाइडल फॉर्म में अगर आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में अगर आता है, तो उसको आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ सैम्पलिंग फंक्शन. समझा मैं क्या बोला? कोई भी सिग्नल एक्स ऑफ टी है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया आप लोगों ने, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर साइन कोसाइन फॉर्म में आ रहा है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आ रहा है, तो उसको आप लोगों को रिप्रेजेंट करना रहता है, उसको कन्वर्ट करना रहता है साइन कोसाइन को इन टर्म्स ऑफ सैम्पलिंग फंक्शन. ओके, so that its amplitude spectrum will be in the form of sampling function. उसका जो amplitude spectrum रहेगा वो निकालेंगे हम लोग, तो उसका amplitude spectrum in the form of sampling functions रहेगा. Isn't it? This is basically the sampling functions. Okay. Now let us see the first problem of this Fourier transform. Find the Fourier transform of gate functions or rectangular pulse shown in figure. Okay. So this is a rectangular pulse. ये जो rectangular pulse है, okay, this rectangular pulse का जो width है that will be tau. Okay, it will start from minus tau by 2 to plus tau by 2. Okay, and its height will be a. So this is x of t signal ऐसा है. Okay, and this is we call as either it is a gate functions बोलते इसको, or we call as a rectangular pulse. So or rectangular pulse, okay, is called as a rectangular pulse of area a tau is we called here the gate functions or rectangular functions. ना इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हम लोग, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इसको हम लोग g of t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ x of t विल रिप्रेजेंट इट बाय g of t. तो फोरियर ट्रांसफॉर्म g of t एज पर डेफिनेशन इज g of ओम एंड द इंटीग्रल ऑफ g of t into e raised to minus j omega dt. But this signal exists only from minus tau by 2 to plus tau by 2. And इसका ये between this duration it has the amplitude a. So this signal is replaced by a in this interval. फिर इसको इंटीग्रेट किया हम लोगों ने,
इसको इंटीग्रेट किया, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो इट विल बी लाइक दिस. देन विल पुट द लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल. फिर इसको हम लोग साइनोसाइडल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ई रेस टू प्लस जे थीटा, अभी ये माइनस है तो ये ई रेस टू प्लस जे थीटा हो जाएगा और ई रेस टू माइनस जे थीटा हो जाएगा. ई रेस टू प्लस जे थीटा, ई रेस टू माइनस जे थीटा अपॉन 2j इज द साइन थीटा, बराबर है. तो उसको साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे हम लोग. अगर यहाँ पे 2j रहता है तो j है, यहाँ पे 2 नहीं है, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2. सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करते हैं हम लोग, तो इट शुड बी लाइक दिस 2a बाय ओम ऐसा हो जाएगा. एंड इट विल बिकम, इधर 2 आ गया तो इधर 2 और रहेगा, तो 2a बाय ओम एंड इट विल बी कन्वर्ट टू साइन फंक्शंस. ओके, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट. नाउ इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आया रेक्टेंगुलर पल्स का, और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आया, साइनोसॉइडल फॉर्म में आया, तो उसको कन्वर्ट करना है आप लोग को सैम्पलिंग फंक्शन में, सिंक फंक्शन में, सैम्पलिंग फंक्शन में कन्वर्ट करना है. मतलब साइन एक्स अपॉन साइन एक्स में उसको रिप्रेजेंट करना है. तो ये साइन एक्स हो गया, ये एक्स हो गया. साइन एक्स अपॉन एक्स भी चाहिए आपको, तो नीचे भी आप लोग को ये फैक्टर चाहिए. कौन सा? ओहम टाउ बाय 2. तो नीचे आप लोग ओहम बाई टाउ, ओहम बाई 2 यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ओहम बाई 2 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टाउ नहीं रहेगा नीचे, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई टाउ. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई टाउ, दिस साइनोसॉइडल फंक्शन विल बी कन्वर्टेड टू साइन एक्स अपॉन एक्स फॉर्म एंड इट विल बी लाइक दिस. ओके, तो साइन एक्स अपॉन एक्स फॉर्म वी सेड अ सैम्पलिंग फंक्शन सा ऑफ एक्स. सो सा ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, तो उसको हम लोग सैम्पलिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गेटिंग फंक्शंस इज a टाउ इंटू सा ऑफ एक्स, सा ऑफ ओहम टाउ बाय 2, लाइक दिस. ओके, अभी इसको इट हैज ए मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में आता है ओनली. ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम निकालते हैं हम लोग. तो गेट फंक्शन हैज ओनली मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग फंक्शन, बिकॉज सैम्पलिंग फॉर्म में आ रहा है. विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ पे रहेगा? व्हेन x इज इक्वल टू 0. ओके, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑकर्स एट ओम इज इक्वल टू 0, बिकॉज एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम में x यहाँ पे क्या रहता है? ओम रहता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्नल्स रहता है. ओके, हियर इट इज फ्रीक्वेंसी, हियर इट इज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड इज वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, वी कॉल द एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम एंड इट इज कंटिन्यूअस इन नेचर. इसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम. ओके, ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, ये फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी जैसा चेंज हो रहा है वैसा उसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. सो वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी वी कॉल्ड एज अ एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम. ओके, तो जो रेक्टेंगुलर पल्स है उसका अगर हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो उसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम ऐसा सैम्पलिंग फॉर्म में मिला हम लोग को. ओके, जीरो क्रॉसिंग ऑकर्स एट एक्स इज इक्वल टू, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ पे मिलेगा? तो ओम इज इक्वल टू 0 पे. और वो कितना मिलेगा? तो ओम इज इक्वल टू 0 पे, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे सैम्पलिंग फंक्शन का एम्पलीट्यूड कितना रहता है? 1. तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो कितना एम्पलीट्यूड रहेगा? 8 टाउ एम्पलीट्यूड. ओके, एंड जीरो क्रॉसिंग ऑकर्स एट x इज इक्वल टू प्लस और माइनस n पाई. बट x अभी यहाँ पे क्या है? तो ये x है, ओम टाउ बाई 2. ओम टाउ बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस n पाई. बट हम लोग का यहाँ पे x एक्सिस में क्या लिया है? ओम लिया है, तो उसमें से ओम अगर निकाला तो ओम का वैल्यू क्या रहेगा? प्लस माइनस 2n पाई बाई 2. तो फर्स्ट जीरो क्रॉसिंग इज ऑकर्स एट n इक्वल टू 1 पुट करते तो पहला जीरो क्रॉसिंग मिलेगा 2 पाई बाई टाउ. सो फर्स्ट जीरो क्रॉसिंग ऑकर्स एट 2 पाई बाई टाउ. सेकंड जीरो क्रॉसिंग ऑकर्स एट 4 पाई बाई टाउ. थर्ड जीरो क्रॉसिंग ऑकर्स एट 6 पाई बाई टाउ एंड सो ऑन. ओके, तो दिस इज एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम. व्हाट डज इट इंडिकेट? दैट कि ये जो आप लोग का रेक्टेंगुलर पल्स है, ओके, दिस इज अ रेक्टेंगुलर पल्स, दिस इज अ गेटिंग फंक्शन. ये रेक्टेंगुलर पल्स जो है इसका मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे है? तो मैक्सिमम एनर्जी ये इतने इंटरवल में है. ओके, मेजर लोब जो है उसका मैक्सिमम एनर्जी इधर है. इधर जो एनर्जी है इसमें ये सिग्नल्स का वो एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, बहुत कम है. ओके, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यहाँ पे एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है एंड वो ये फ्रीक्वेंसी के रेंज में -2 पाई बाई 2 से लेकर +2 पाई बाई 2, ये जो फ्रीक्वेंसी है रेंज, ये फ्रीक्वेंसी के रेंज में उसका मैक्सिमम एनर्जी है. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन. ओके, दिस इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गेटिंग फंक्शंस. देन द one problem we have in the Fourier transform rectangular function is in the form of sampling function, so it's amplitude spectrum in the form of sampling functions. Okay, now
एंटीना है, एंटीना को अगर हम लोग ये सिग्नल्स अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा मतलब आप लोग एक डीसी सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं इतने ड्यूरेशंस के लिए, तो हो गया आप लोग गेट फंक्शंस। एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अगर आप लोग कांस्टेंट एम्पलीट्यूड दे रहे एंटीना को, तो हो गया वो गेट फंक्शन। तो ऐसा अगर आप लोग सिग्नल दे रहे हैं एंटीना को, ओके, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का सिग्नल फॉर अ सर्टेन टाइम इंटरवल, तो दैट विल बी गेट फंक्शन। तो उसका अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस करते हैं, तो उसका अगर रेडिएशन पैटर्न फॉर्म में रखते हैं, तो उसका रेडिएशन पैटर्न ये फॉर्म में रहेगा। ओके, तो वो एंटीना जो रेडिएट करेगा वो मैक्सिमम रेडिएशंस आप लोग का ये डायरेक्शन में करेगा। Okay, that will be later on you are going to learn in AWP subjects. Okay, so let us see problem number 2. Find the Fourier transform of these signals. Okay, that we are going to see in next problem because video थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है. Okay, thank you.